Hello student, today we will start with history lesson number 1 of standard 8. Lesson number 1 chapter how, when and where. In this chapter we will study about how important are dates, which dates to be considered, how to be periodized, that is periodization done by a James Mill, Scottish economist, the term colonization, sources of past which help historian to find about the past history. In this they have taken the Britishers administration record which is known as official records and surveys conducted by the Britishers when they ruled in India. And the last topic we will cover is what official records do not tell. This point tells us that how in this official records of Britisher doesn't describe anything about the Indians people condition when Britisher ruled over here. I will explain you the first point how important are dates. Page number 1 of your textbook. How important are dates? There was a time when historians were fascinated with dates. There was heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the first paragraph they are giving us information कि जो historians थे वो history को किसके ऊपर related करते थे, dates के ऊपर यानी कि events. अब ये events लेते थे वो लोग year यानी कि साल से. Living in the world we do not always ask historical questions. हम कभी भी कोई चीज़ देखते हैं तो हर बार historical questions नहीं पूछते. हाँ बट कई बार हम कोई monuments को देखते हैं या कोई और चीज़ को देखते हैं तो हमें ये ज़रूर सोचने में होता है कि पास्ट में कैसे हुआ होगा, ये कब आया होगा. एग्जाम्पल ताजमहल. दूसरा एग्जाम्पल है रेलवे कि रेलवे कब इन्वेंट हुआ होगा, प्रिंटिंग कब इन्वेंट हुआ होगा. तो ये सारी चीज़ें हमें पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताती हैं. यानी कि हिस्ट्री इज रिफर टू द पास्ट. पास्ट में काफ़ी चेंजेस होती है, इकोनॉमी, सोसाइटी और प्रेजेंट तक उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं. अब दूसरा टॉपिक है which dates to be considered. हिस्ट्री में कौन से डेट्स के क्राइटेरिया लेंगे. आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दो क्राइटेरिया का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. फर्स्ट क्राइटेरिया इज अबाउट द ब्रिटिश, यानी कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में रहते थे और ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कोई भी हिस्ट्री की बुक लिखी होगी तो वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के बारे में लिखा होगा. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया. Rule of each Governor General was important. These histories began with the rule of first Governor General Warren Hastings, ended with the last Viceroy Lord Mountbatten. यानी कि जब वो हिस्ट्रीज लिख रहे होंगे तो वो उनके गवर्नर जनरल के रूल, पॉलिसीज, प्लान के बारे में लिख रहे होंगे. यहाँ पे कुछ आपको नाम दिए गए हैं गवर्नर जनरल: हास्टिंग, वेलेस्ली, बैंटिक, डेलहाउसी, कैनिंग, लॉरेंस, लिप्टन, कर्सन, हार्डिंग एक्सेट्रा. ये सारे गवर्नर्स और वाइसरॉय के नाम दिए गए हैं. अब वाई डू वी नीड टू राइट अ हिस्ट्री. हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह लिखना है या हिस्ट्री को हम चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं. नाउ व्हाई इट इज़ नेसेसरी कि हिस्ट्री को हमें डिवाइड करना है. हिस्ट्री को इसलिए डिवाइड करना है कि वे एक पीरियड से जब दूसरे पीरियड की चेंज आती है तो उसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और प्रॉस्पेरिटी की चेंज आती है. जैसे कि मैं राजपूत की बात करूँ यानी मेडिवल की बात करूँ, मेडिवल से जब मैं मॉडर्न की बात करूँ तो उसमें काफ़ी चेंजेस आती है. ये जो डिवीजन है वो हम पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन में. हाउ डू वी पीरियडाइज, जो लिया गया है जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिक्स ने. इन 1871 जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल फिलोसोफर था. उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, 3 वॉल्यूम वर्क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन दिस बुक ही हैड डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इन 3 periods: Hindu, Muslim and British. It was divided in 3. Hindu is the period when Rajput ruled over here. Muslim is the period when Sultanate and Mughal ruled over here. And British is the period when Britishers came over here for trading and then they started ruling in India. So he periodized history in the 3 parts: Hindu, Muslim and British. In his book, he have written few information given for Indians of our Asian societies. Mill thought that all Asian societies were at the lower level of civilization than Europe.
अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इट वाज कि जो भी लोअर लेवल के पीपल है एशियन सोसाइटीज के, वो सिविलाइज्ड नहीं है यूरोपियन पीपल से। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग, बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया ये सारे लोग अनसिविलाइज्ड थे, और जब ब्रिटिश यहाँ पे आया उसके पहले यहाँ पे कौन रूल करता था? हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम मोस्टली दे वर रिलीजियस इंटॉलरेंस, उनके कास्ट टैबूज, सुपरस्टिशंस, यानी मोस्ट ऑफ द होल सोसाइटी वाज कवर्ड विद सोशल इविल्स। ब्रिटिश रूल मील फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। मील को लगा कि ब्रिटिश रूल ही इन इंडियन को सिविलाइज कर पाएगा, और ज़रूरी था अगर उन इंडियंस को सिविलाइज करना हो तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, institution and laws in India. Mead in fact suggested that British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. Mead, according to Mead, what he suggested कि अगर Indians को happiness करना है, Indian people को enlightenment करना है, तो ब्रिटिश को पूरे इंडियन टेरिटरीज को कॉन्कर करके रूल करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मील कि ब्रिटिशर के आने के पहले इंडिया डार्कनेस में था, यानी ब्रिटिशर के आने के बाद ही इंडियंस सिविलाइज्ड हुए। बट आवर इंडियन हिस्टोरियंस डू नॉट एक्सेप्ट दिस। उन्होंने इंडिया को अलग 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम या ब्रिटिश में नहीं डिवाइड किया है। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न में डिवाइड किया। एंशिएंट की जब मैं बात करती हूँ तो जब प्रिंटिंग नहीं था, फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन। मिडीवल की बात करती हूँ तो जब अर्ली मिडीवल पीरियड एंड लेट राजपूत आ गए, और फिर धीरे धीरे सल्तनत, मुगल, और लेट मिडीवल पीरियड तक प्रिंटिंग, राइटिंग सब फॉर्म हो गए। मॉडर्न की बात करते हैं जब साइंस, टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड, यानी कि ब्रिटिश रूल यानी मॉडर्नाइजेशन होना शुरू हो गया। तो मैनी हिस्टोरियंस मानते थे कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आया वो मॉडर्न पीरियड है, और काफ़ी इंडियन हिस्टोरियंस ये भी मानते थे कि जब ब्रिटिश यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए, पर ट्रेड करते हुए वो यहाँ पे जब रूल करने आए, यानी कि उन्होंने वो ये थर्ड पीरियड, मॉडर्न पीरियड को टर्म दिया था कॉलोनियल, यानी कि कॉलोनाइजेशन टर्म उन्होंने स्टार्ट किया था। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इज कॉलोनाइजेशन। क्यों कुछ हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल रूल बोला गया है या ब्रिटिश टर्म को कॉलोनाइजेशन किया गया है। इन दिस बुक हम जब हिस्ट्री की सैम 1 में पढ़ेंगे, ब्रिटिश कैसे यहाँ पे ट्रेड करने आए, ब्रिटिश ने कैसे हमारी सारी टेरिटरीज को कॉन्कर किया, लोकल नवाब्स और राजा की टेरिटरीज को सब्जुगेट किया। जब कोई दूसरी कंट्री जो स्ट्रांग होती है वो हमारे कंट्री में यहाँ पे आती है और कॉन्कर करती है और फिर रूल करती है, और जब वो यहाँ पे कॉन्कर करके रूल करती है तब सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल चेंज आती है, तब वो सारी प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहते हैं। सिंपल है, कोई दूसरी कंट्री, पावरफुल कंट्री कोई और कंट्री में कॉन्कर करती है और कॉन्कर करके वहाँ पे रूल करती है, और वो पर्टिकुलर कंट्री की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस आती है, तब उस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। इसीलिए हमारे टेक्स्ट बुक में या इसीलिए हिस्टोरियंस ने जब जितने साल यहाँ पे ब्रिटिश रूल था उस पीरियड को उन्होंने कॉलोनियल पीरियड बोला गया है, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो दूसरी कंट्री इंग्लैंड से यहाँ पे आए इंडिया में, उन्होंने हम पे रूल किया, कॉन्कर किया, और उनके रूल और कॉन्कर के बाद यहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंज आया, यानी हम वो तीनों प्रोसेस से गए, कॉलोनाइजेशन हुए, इसलिए इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड बोला जाता है। नाउ आई एम रीडिंग द डेफिनेशन फ्रॉम योर बुक, पेज नंबर 4, under the paragraph what is colonial. When the subjugation of one country, means here they are telling us British, by another, means that is India, leads to kind of change in political, economic, social and cultural change, we refer to this process as colonization.
So in this book, we will study about the whole colonization process.